Good morning, dear students. Before proceeding with the savvy assignment, let us take a pledge. I am Ravinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So dear student, this is your computer book IT Hub. Okay, so open it, chapter number 3. Chapter number 3. Now we are on page number 26. Okay, open your page number 26. So on the page number 26 there is a chapter number 3 and the name of the chapter is input and output devices. So today what we are going to read about input and output devices that are attached to the computer and what are the purpose of all these devices, and so we will learn in this topic. Okay, first of all we have write correct word for each picture. So here we have 3 options: process, output, input, and there are 3 boxes given to you. Okay, so in each box, in front of each box there is a picture. We will recognize the picture and write the name. Okay, we will identify the picture and write the name here in the box. Okay, process, output, input. Okay, first of all we will read about it. Mouse is an input device. Mouse is an input device. CPU is a processing device. Monitor is an input device. Let us learn about them. Okay, so क्या बोला गया है इसमें कि जो माउस है वो क्या है, इनपुट डिवाइस है. What is a mouse? Mouse is an input device. Okay, where the mouse is in this picture? Where the mouse is? Here it is. Okay, so it is an input device. तो हमने यहाँ पर फिल करना है इनपुट. ठीक है, what we will write here? Input, INPUT, put, input. Next is CPU is the processing device. Where is the CPU? Here it is. Okay, this is a CPU. So this is a processing device. Okay, it is called a processing device. तो हमने यहाँ पर लिखना है it is used for process. ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्रोसेस लिख दिया. नेक्स्ट है मॉनिटर इज़ कॉल्ड एन आउटपुट डिवाइस. मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस. तो वेयर द मॉनिटर इज़ इन दिस पिक्चर. देखो यहाँ पर मॉनिटर, यहाँ पर हमें जो अपना रिज़ल्ट है वो डिस्प्ले होता है. ठीक है, आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होती है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड आ आउटपुट डिवाइस. तो यहाँ पर हमने लिखना है आउटपुट, OUT आउट, PUT पुट, आउटपुट. ओके, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. नेक्स्ट वी हैव इनपुट डिवाइसेस. ओके, व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस? ओके, you can use an input device to give data and instructions to a computer. Why we use an input device? We use input device to give data and instruction. Now what are the data and the instructions? Okay, what are the data and the instructions? A data can be a word. It means it can be a name of any student. It can be a roll number. Okay, or it is in the form of picture also. Okay, so a data can be a word, number or drawing. The data stored in a computer is called soft copy because we can't टच इट. ओके, क्योंकि हम उसको टच नहीं कर सकते. ठीक है, वो क्या होती है, सॉफ्ट फॉर्म में होता है. जो कंप्यूटर के अंदर डेटा होता है स्टोर, वो किस फॉर्म में होता है, सॉफ्ट फॉर्म में होता है. ठीक है,
दैट्स और उससे फिर क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है, ठीक है। A mouse and a keyboard are input devices. Other input devices are scanners and microphones. Okay. All other input devices are mouse and keyboard. These are the input devices. These are used to give input instructions to a computer to perform a particular task. Other input devices are scanners and microphones. So now we will elaborate one by one all of these input devices. First of all we have a keyboard, ठीक है। Keyboard is an input device. Okay. Keyboard has buttons called keys. Okay. Keyboard has buttons called keys. Look at this picture. This is a picture of a keyboard. ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ बटन्स दिए गए हैं, इनको बोलते हैं कीज़। क्या बोलते हैं इनको? कीज़ बोलते हैं। You press them to type letters and numbers. ओके, हम इन बटन्स को प्रेस करते हैं क्या टाइप करने के लिए? लेटर्स को टाइप करने के लिए और नंबर्स को टाइप करने के लिए, ठीक है। मोस्ट कीबोर्ड्स आर कॉल्ड QWERTY कीबोर्ड्स। मोस्ट ऑफ द कीबोर्ड्स are called QWERTY keyboards. This name comes from the first 6 letters on the top row of alphabet keys, ठीक है। बिकॉज जो उनकी फर्स्ट 6 लेटर्स होते हैं टॉप रो में वो कैसे होते हैं? QWERTY होते हैं, ठीक है। पहले Q होता है, फिर W होता है, फिर E, फिर R, फिर T, फिर Y, ठीक है। दैट्स वाई दीज कीबोर्ड्स आर कॉल्ड QWERTY कीबोर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ कहाँ से आया ये नेम? क्योंकि उसके जो फर्स्ट 6 लेटर्स होते हैं टॉप रो में वो कौन से होते हैं? अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं ये वाली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज़ अ माउस। ओके, यहाँ पर हमें उसकी पिक्चर दी गई है, ठीक है। ए कंप्यूटर माउस हैज़ 2 बटन्स, ठीक है। उसके कितने बटन्स होते हैं? 2 बटन्स होते हैं। 1 स्क्रॉल व्हील, ठीक है। 2 बटन्स होते हैं और एक स्क्रॉल व्हील होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर बटन्स हैं इसके, ये लेफ़्ट और राइट, ठीक है। और जो मिड में है वो क्या है? स्क्रॉल व्हील है। यू यूज़ अ माउस टू पॉइंट एट आइकन्स ऑन द स्क्रीन। वाई वी यूज़ अ माउस टू पॉइंट एट आइकन्स ऑन द स्क्रीन, ठीक है। जब भी हमने किसी आइकन को पॉइंट करना है तो जो स्क्रीन पर आइकन होते हैं उनको पॉइंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? माउस यूज़ करते हैं, ओके। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ पॉइंटिंग डिवाइस, बिकॉज वी यूज़ इट टू पॉइंट at icons on the screen. You can also use it to select and move icons on the screen, ठीक है। और इसका यूज़ क्या है कि हम इसको सिलेक्ट, किसी भी पर्टिकुलर आइकन को सिलेक्ट करने के लिए और उसको मूव करने के लिए भी यूज़ करते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ स्कैनर। यू कैन यूज़ अ स्कैनर टू कॉपी अ पिक्चर और पेज इनटू अ कंप्यूटर। तो हम क्या करते हैं स्कैनर से, ठीक है, टू कॉपी अ पिक्चर और पेज इनटू अ कंप्यूटर, ठीक है। स्कैन करते हैं, ठीक है, किसी भी पेज को। यू सी अ पिक्चर और पेज ऑन द स्क्रीन, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास होता है वो पेज वो हम कंप्यूटर में देख सकते हैं उसकी वजह से, ठीक है। स्कैनर की वजह से जब वो स्कैन हो जाता है तो फिर हम उसको क्या कर सकते हैं? वी कैन सी दिस पिक्चर और पेज ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्कैनर। There are 3 types of scanner. First one is the flat bed scanners, next is handheld scanners, and after that there is a specialist scanners, ठीक है। तो these 3 scanners यहाँ पर हमारे पास है फ्लैट बेड स्कैनर, हैंडहेल्ड स्कैनर और उसके बाद है स्पेशलिस्ट स्कैनर्स। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन। यूज़ अ माइक्रोफोन टू रिकॉर्ड योर वॉइस एंड सेव इट ऑन अ कंप्यूटर, ठीक है। तो हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं? माइक्रोफोन्स का, ठीक है। एंड वी कैन ऑल्सो सेव इट ऑन अ कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन। यू कैन ऑल्सो यूज़ इट टू रिकॉर्ड म्यूज़िक। वी कैन ऑल्सो यूज़ इट टू रिकॉर्ड म्यूज़िक ऑल्सो। ओके बच्चे, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। आज हमने इतना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास है रीअरेंज द लेटर्स टू कंप्लीट द नेम ऑफ दीज डिवाइसेस। हेयर वी हैव द नेम ऑफ सम डिवाइसेस, ठीक है, बट दीज आर इन जम्बल्ड फॉर्म, ठीक है। वी हैव टू रीअरेंज द लेटर्स टू कंप्लीट द नेम ऑफ दीज डिवाइसेस, ठीक है।
तो फर्स्ट लेटर जो है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, हमने उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। जो सभी डिवाइसेस के नेम हैं हमारे पास, उनका जो फर्स्ट लेटर है वो अपनी राइट पोजीशन पे है, हमने उनको चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट इज़ ओ भी ठीक है। तो उसके बाद आएगा US-E, लेकिन यहाँ पर क्या है EUS, ठीक है। तो आपने ठीक करना है, इनको रीअरेंज करना है, MOUSE लिखना है रीअरेंज करके, ठीक है। माउस क्या बनेगा हमारे पास, माउस बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ स्कैनर, ठीक है। हमारे पास ये इन जंबल्ड फॉर्म में है, ठीक है। हमने इनको भी इन लेटर्स को रीअरेंज करेंगे, क्या बनाएंगे इसका, स्कैनर, ठीक है। क्या कौन सा वर्ड बनाना है हमें, स्कैनर डिवाइस बनेगी, SCANNER, स्कैनर। उसके बाद आएगा कीबोर्ड, KE BOARD, बोर्ड, ठीक है। तो आपने इनको रीअरेंज किया, इन लेटर्स को, पहले K फिर E फिर BOARD, कीबोर्ड। उसके बाद है माइक्रोफोन, MICRO, माइक्रो, MICRO, माइक्रो, PHONE, फोन, माइक्रोफोन। So first input device is mouse, next is scanner, after that keyboard, then microphone, mouse, scanner, keyboard, microphone, okay? ओके बच्चे, तो आज हमने इतना ही करना है, ठीक है। और आपको मैंने जो अभी हमने रिवाइज़ किया है, आपने इसको अपना बुक के पेज नंबर 26 पे, ठीक है, जो हमने यहाँ पर फिल किए हैं, आपने अपनी बुक में फिल करने हैं। उसके बाद जो हमने अभी रीअरेंज द लेटर्स किया है, वो भी आपने अपनी बुक के पेज नंबर 28 पर कंप्लीट करना है। ओके बच्चे, थैंक यू।